हाँ जी बच्चे, we were doing sexual reproduction in plants. This type of reproduction takes place mostly in flowering plants, the plants that bears flowers, right? And those plants that bears flowers, the flower contain two main parts. हाँ जी, but not all the flowering plants. Okay, there are some flowers that are having unisexual, there are some flowers that are having bisexual. ठीक है ना, ये भी होता है. फ्लावर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल फ्लावर, और आपको सबसे कॉमन फ्लावर की मैंने आई थिंक एग्जांपल दी हुई है, हिबिस्कस और चाइना रोज दिखाया ना. उसमें हमारे दोनों पार्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर होते हैं. एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन. Stamen is also to be called as male reproductive part. It is divided it into two parts, filament and anther. The long stem-like structure is called as filament. The upper portion, that is a bulb-like, it is having a filament, and filament contains, filament के ऊपर क्या होता है? Filament contain pollen grains. Pollen grains are the carrier of male gametes. ठीक है? These are the carriers of male gametes. ठीक है? Second, the female reproductive organ is pistil. You very well know what are the three parts of pistil: stigma, style, and ovary. The uppermost part is called as stigma. The long narrow tube is called as style. It connects to the stigma to the ovary. Ovary contains ovules. Pistil contains ovary, and ovary contains ovules. Ovules are the carriers of female gametes. ठीक है? And when this male and female gametes, they fuse each other, when they fuse each other, then a zygote is formed, right? And this process is called as fertilization. ये होती है fertilization. So if we will talk about the mechanism of this reproduction, so mechanism, it consists of four basic parts. Four steps हम consider करते हैं mechanism में. Number one step is pollination. Pollination हमने study की थी. What is pollination? Pollination होता है transfer of pollen grains. यही था, transfer of pollen grains from pollen grains, हाँ जी, from the stamen to the stigma of pistil. From the stamen to the stigma of the pistil, that is called as pollination. Pollination के हमने, हाँ जी, anther भी लिख सकते हो. From the anther to stigma. ठीक है? And under pollination we have studied two types of pollinations. कौन सी थी? Self pollination and cross pollination. What is self pollination? नहीं, ये incomplete. When the pollen grains of the one flower is transferred to the stigma of the same flower. ठीक है? When pollen grains of the one flower is transferred to the stigma of the same flower, then this type of pollination is called as self-pollination. Cross, when the pollen grains of one flower is transferred to the stigma of other flower of the same kind. ठीक है? किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाती है, प्रोवाइडेड क्या है? फ्लावर जो है इट इज ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसा होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है? और इसके अलावा हमने पॉलिनेशन में क्या चीज की थी? हाउ पॉलिनेशन इज डन.
व्हाट आर द वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से थे? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स लिख लेते हैं, कलेक्टिवली सारे इसी में आ गए, यही थे, है ना? एनीथिंग एल्स? हाँ जी बेटे, वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं सारे, एनिमल्स में ही कंसिडर कर लेते हैं सारे ह्यूमंस को, ठीक है? विंड में बेटे दोज एजेंट्स आर sorry, those pollen grains are transferred that are of light weight, है ना? विंड, वाटर और एनिमल्स मेनली यही होते हैं, पोलन ग्रेन्स जस्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, हवा चलती है वो हवा के साथ हो जाते हैं, पानी आप डालते हो पानी से हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी बच्चे, देयर इज अ क्वेरी, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मैं दोबारा लिख देती हूँ, व्हेन, पर मैं एक ही लिखूंगी, क्रॉस अपने आप लिख लेना, पोलन ग्रेन्स of pollen grains of one flower is transferred to the stigma of same flower, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये विंड के साथ हो जाते हैं बहुत इजीली, या वाटर के साथ होते हैं, जब आप पानी डालते हो तो वाटर के ड्रॉप्स के साथ ही पोलन ग्रेन्स कई बार ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट? और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे सेम फ्लावर की बजाय आपने वर्ड लिखना है डिफरेंट फ्लावर, या टू स्टिग्मा ऑफ सम अदर फ्लावर, डिफरेंट की बजाय अदर वर्ड लिख लो, अदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ हाँ बोलो। अलग, हाँ उसी प्लांट पे उसी फ्लावर्स में रहता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और पर आप फ्लावर वर्ड यूज करो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। और मेथड्स आपको क्लियर है? सॉरी, एजेंट्स, एजेंट, विंड, वाटर एंड एनिमल्स, they are just transferred by this agent. So that was the first mechanism of sexual reproduction in plants, that is pollination. Pollination हो गया, क्लियर है सबको? बेटे अगर किसी को कोई डाउट है, you guys can raise hand, otherwise I will move forward. क्या पॉलिनेशन स्टेप कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? नेक्स्ट इट इज, सेकंड कौन सा था? फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हाँ जी, मैंने पहले भी आपको लिखा था, when the male gametes and female gametes fuse each other for the formation of zygote, ठीक है? मेल गैमीट fuses female gamete for the formation of zygote, ठीक है? जब आपका जाइगोट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये आपकी फर्टिलाइजेशन होती है बच्चे, ठीक है? और इसमें हमने क्या किया था फर्टिलाइजेशन में? फर्स्टली तो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी। एक्सप्लेनेशन में क्या था कि
व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड, हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा पे आके स्ट्राइक करते हैं, पॉलिनेशन में कंप्लीट हो जाता है। When the pollen grains strike here at this point, they will penetrate through the walls of the stigma and forms a pollen tube. वो एक pollen tube बनाते हैं ऐसे करके। This pollen tube elongates itself, अपने आप को enlarge करती है, passes through the style and reaches to ovary. हाँ जी बच्चे, ये मैं सिंगल डायग्राम में दोनों डायग्राम्स बना रही हूँ। आपको दो डायग्राम्स करवाए थे ना पहले फर्टिलाइजेशन के, अभी मैं एक ही बना रही हूँ। आप दोनों में से दोनों को कंबाइन करके ये भी बना सकते हो। यू कैन गो फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, ड्रॉ कर लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवन सेपरेट भी बना सकते हो। हरी अप स्टार्ट ड्रॉइंग, जिन्होंने नहीं किया निकाल लो कॉपी। लिखना इतना मुश्किल है सबको? So starting from the first, स्टार्टिंग में यहीं से कर रही हूँ बच्चे। मैंने इसको थोड़ा बड़ा ही बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए इसके अंदर वाला। नहीं नहीं, समझ तो आए, इतना तो बनाओगे ना। सो दिस इज योर पोलन ग्रेन्स, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट्स ऐसे ही होते हैं। नाउ ये वाला मैं सिर्फ फर्स्ट बना रही हूँ, ठीक है। एक और बना रही हूँ पोलन ग्रेन्स, उसको यहाँ से पेनिट्रेट करते हुए दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, they reach here in the ovary, it will reach in the ovary। अब ओवरी में कैसे बनाना है बच्चे? फर्स्ट तो पहले तो मैंने एक सर्कल बनाया, इसको ऑलमोस्ट यहां से कवर करते हुए एक और बनाया, देन अगेन थर्ड वन। ये लो, ठीक है जी। इसी में आपके दोनों स्टेप्स कवर हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन भी, डबल फर्टिलाइजेशन भी, और साथ ही साथ आपके बाकी के स्टेप्स भी इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये लो जी, लो पकड़ो। और यहाँ पे दो तीन मैंने आपके ओव्यूल्स टाइप बना दिए, इसके अंदर दीज आर योर फीमेल गैमीट्स। इसी तरह से क्योंकि दोनों तरफ होते हैं तो मैं नीचे भी बना देती हूँ, ठीक है। ये क्लियर है? दीज आर योर ओव्यूल्स एंड एग्स। हाँ जी, क्या स्टेमन तो यहाँ होता ही नहीं। फर्टिलाइजेशन में स्टेमन का एज इट इज कोई रोल नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था कि बच्चे जो पहले आपको डायग्राम करवाया था उसमें फर्स्ट पार्ट ये था जिसमें पोलन ट्यूब बन रही थी, और सेकंड पार्ट में फर्टिलाइजेशन दिखाई थी। यहाँ आके फर्टिलाइजेशन हुई थी, और ये हमारे दो न्यूक्लियाई आपस में आके स्ट्राइक कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे आओ, लेबलिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके पोलन ग्रेन्स हैं जी, इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर ये नीचे तक पहुंच गया तो दो सीड्स भी बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज पोलन ग्रेन्स, दिस इज स्टिग्मा। आशिमा इज देयर? स्टाइल,
ओवरी। ये तो आपके बेसिक पार्ट्स हैं जो आप सबको पता है, ठीक है। और ये वाले क्या है, व्हाट आर दीज टू, दीज आर दी पोलन ट्यूब्स। दिस इज द पोलन ट्यूब, and once this pollen tube is completed, it strikes the ovary, it bursts open here, and the male gametes transfer from these pollen tube and reaches to the ovary. Have you done? Male gametes move from the pollen tube and reaches to the ovary. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? एंड व्हाट इज दिस, ये जो सबसे अंदर वाला सर्कल है ना बेटे, ये वाला, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोइड सैक। एम्ब्रियो सैक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, दिस एन एम्ब्रियो सैक। इसको मैंने मेंशन कर दिया, पोलर न्यूक्लियाई। और इसके अंदर आपके मेल और फीमेल गैमीट्स के न्यूक्लियाई आपस में स्ट्राइक करते हैं, विच आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। हाँ, वो बाहर, ये एम्ब्रियो सैक हो गया ना। ये वाले जो डॉट्स है ना, दे रिप्रेजेंट्स ओव्यूलाई। AE means eggs, ठीक है, जिनके अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं। ये रहे आपके ओव्यूल्स। क्या नहीं, जितने मर्जी आ जाए, पर ये है कि कितने आते हैं ये डिपेंड करता है। पोलर न्यूक्लियाई, आई थिंक EI होता है, न्यूक्लियाई EI, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, चलो आई थिंक इतना काफी है। ओव्यूलाई, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, एग्स। AE लिखे है बेटे, LUAE, ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम भी कहते हैं। अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में आ गया तो भी ड्रॉ कर सकते हो, और अगर सिंपल फर्टिलाइजेशन आती है तो आप पहले वाले दोनों डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। हाँ जी, ओवरी, क्या इधर आ जा, ये ओवरी, ये रही, ये वाला सारा पार्ट आपका ओवरी। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर एक चीज और होती है, दैट इज एंटीपोड, दैट एक्ट्स लाइक अ न्यूट्रिशन फॉर दीज एम्ब्रियोज। जैसे आप लोगों ने 5th में पढ़ा हुआ है ना कि सीड को वो चाहिए होता है न्यूट्रिशन, है ना, कॉटिलिडॉन्स से। तो एक ऐसी चीज और होती है, दैट इज एंटीपोड, ठीक है, वो यहाँ मेंशन करते हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए होती है। तो ध्यान दो, ये डॉट्स क्या है, यहाँ पे आ गए ना, पोलर न्यूक्लियाई के बीच में जो डॉट्स है, they react with they fuse each other and they will form a one single seed, ठीक है, they will form the seeds. That is, this is your second step. क्या कहा आपने? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटे आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक्स इसके आगे और कवर होते हैं, अंडर द मैकेनिज्म, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड द fruit, and the last is germination of seed, that is the proper process of sexual reproduction in plants. Fertilization clear hai? Shall I move further?
नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सीड। हाँ जी बेटे, यहाँ पे तो सिर्फ आपके फ्यूज हुआ है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है। जैसे ही जाइगोट बन गया तो साथ ही उसके बाद सीड बनेगा एंड फ्रूट। ठीक है, फ्रूट कैसे बनेगा? सबसे पहले द ओवरी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ओवरी किस चीज में कन्वर्ट होती है? ओवरी किस चीज में कन्वर्ट होती है? हाँ जी, फ्रूट में। ओवरी नहीं फॉल करती, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। बाकी के जो पार्ट्स है ना फ्लावर के, जैसे कि आपका स्टेमन बच गया पीछे, हमने तो सिर्फ उसमें से पोलन ग्रेन यूज किए हैं। ओवरी की स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब फॉल ऑफ कर जाते हैं। और सॉरी, ओवरी की क्या गई, पेस्टिल की। हाँ ये वाली, ये इतना पार्ट, इसको स्टाइल कहते हैं। वो टूट जाती है। फ्लावर फिनिश हो रहा था बेटा। हाँ तो बच्चे मेरी बात सुनो, उसमें फ्लावर जो है दैट डज नॉट एक्ट एज अ पेरेंट, फ्लावर दैट गेट्स फिनिश्ड, फ्लावर आपका खत्म हो जाता है, फ्लावर इज नॉट अ पेरेंट। ठीक है, एक मिनट बच्चे, जो फ्लावर क्या है ना, फॉर्मेशन इन द सेक्शन। यस बच्चे, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। और सीड्स किससे बनते हैं? सीड्स दे आर मेड बाय द फ्यूजन ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, by the fusion of ovules you will get the seeds and other parts like stamen, style etc, even आपकी petals, they all dry off and follow, dry and follow. That is the formation of seeds and fruits, right? And the last part of this topic is germination of the food, germination of the seed. The seed germinates into a new plant. और germination का डायग्राम आप सबने किया हुआ है, ठीक है, तो I need not to draw it again. germination आप सबको आता है. Fourth one is germination. Germination क्या होता है? growing of a new plant from a seed. That is called a germination. और germination में बेटे थोड़ी सी explanation seed की है. Seed के ऊपर there is a hard outer covering which is called as seed coat, है ना? It contains food for the growing embryo, and what the food is called as? Cotyledons. याद है? It also contains, your seed also contains baby root and baby shoot. What are the name? Radicle and plumule. ठीक है? It contains radicle and plumule also. So that's all. Germination में seed के थोड़े से parts हैं, that you all know that. And at the last we had done the dispersal of seeds. Seeds can be dispersed from one place to another, just to avoid overcrowding, so that each and every seed will get proper nutrition, and different places have different types of plants. हाँ जी, स्टिग्मा बेटे अकेले स्टिग्मा का डायग्राम नहीं आएगा, क्योंकि स्टिग्मा का डायग्राम तो सिर्फ ये भी हो गया, ये नहीं. आई थिंक इट्स करेक्ट ना, स्टिग्मा ऐसे ही होता है. स्टिग्मा तो ये हो गया. स्टिग्मा का डायग्राम नहीं आएगा, पिस्टल का आ सकता है. ठीक है, फिलहाल उसका आ सकता है, स्टेमन का. वो सब आपको करवाया हुआ है ना डायग्राम. ठीक है जी,
और इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी डाउट है, डिस्पर्सल इट इज आल्सो टेकन बाय फ्यू एजेंट्स, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड, और कौन सा एजेंट है? हाउ डू डिस्पर्सल टेक्स प्लेस? एक्सप्लोजन। ठीक है, these are the four main ways by which the dispersal of seeds takes place. इसके अलावा बेटे इस चैप्टर में कोई और डाउट है तो बताओ. That completes the revision of this chapter. Last is motion and time. नहीं, ठीक है, that's better. हाँ जी, मोशन एंड टाइम में बेटे सबसे पहले तो ये है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. ये हमेशा याद रखना, मोशन एक रिलेटिव टर्म है. आप कभी भी मोशन को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जब भी आपको मोशन एक्सप्लेन करना है ना, यू मस्ट हैव टू डू द कंपैरिजन. मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मींस आप हमेशा कंपैरिजन में उसको एक्सप्लेन करते. अगर मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यू कांट कंपेयर इट. एक सेकंड बेटा. हाँ जी अनमोल. मैम मैंने पूछना था, जो हमने इक्वेशंस आएंगी वो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है या फिर फुल फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, इक्वेशन इक्वेशंस, मेरी बात सुनो. इट डिपेंड्स, कोशिश तो करो इक्वेशंस दोनों तरह से लिखो. पहले ऊपर फॉर्मूला लिखो, नीचे उसका पूरा फुल नाम लिखो. दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एन इक्वेशन. जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो. क्या थी? कौन सी थी? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. ठीक है, इट गिव्स, क्या बनता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, है ना. इसको पूरा लिखो, आयरन कॉपर सल्फेट. ठीक है, आयरन सल्फेट कॉपर, और इसके साथ आपने क्या लिखना है? ये पर्टिकुलर इक्वेशन में कलर्स भी थे, कलर्स भी वेरी कर रहे थे, तो आपने वो भी मेंशन करने हैं इस वाली इक्वेशन में. किसका ब्लैक था, इसका कौन सा था? ब्लू. इसका था ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन था. एंड दिस इज ब्राउन. जो मर्जी लिख देना. सो आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. ठीक है, दिस इज द एक्चुअली करेक्ट वे ऑफ द राइटिंग एन इक्वेशन. करेक्ट वे यही होता है, पहले आप फॉर्मूलाज लिखो, उनके नेम लिखो, और उसके बाद अगर उसमें कुछ भी है, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली कोई इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. एरो करवाया? एरो करवाया आपको? कोई भी एक इक्वेशन बोलना कार्बन डाइऑक्साइड वाली. C2H5COONA, ये थी ना? नहीं नहीं, C2H5 नहीं था, आपको एसिटिक एसिड है. COOH एसिटिक एसिड वाली है. एसिटिक एसिड प्लस Na2CO3, यही था. When it reacts आपके पास बनता है, तो इसको मैंने सॉल्ट करवाया था, इसका नेम नहीं करवाया था. सॉरी, करवाया हुआ है, सोडियम एसिटेट करवाया हुआ. CONA प्लस H2O प्लस CO2. CO2 के साथ यहाँ पे एक एरो करवाया. एग्जैक्टली जितनी भी गैसेस लिबरेट होती है ना इक्वेशन में, उनके साथ हम एरो लगाते हैं. ये एरो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि जो चीज बाहर आई है वो ऊपर को जा रही है, यानी कि इट इज अ गैसियस फॉर्म. जी, और ये एक्चुअली हम एरो जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ एन इक्वेशन, ये वाला एरो भी. ठीक है, क्योंकि आपको नहीं करवाया हुआ, इट इज अ स्टार्टिंग, तो आप ओमिट भी करोगे कोई बात नहीं, बट ये होता है. ठीक है, हर चीज का एरो, इक्वेशन के काफी पार्ट्स होते हैं, और इसको भी प्लीज पूरा लिख देना. एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट. आई एम नॉट राइटिंग इट हियर. हाँ जी,
बिल्कुल आएगा। ये तो मान के चलो, ये तो सोचना भी मत कि आपको इक्वेशन लिखने के लिए नहीं आएगी। इक्वेशन का तो क्वेश्चन 110% आएगा। अब कौन सी आती है ये मुझे नहीं पता, बता देती अगर पता होता तो। ठीक है, एनी हाउ मोशन की बात कर रहे थे। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कैसे मींस, अगर आपको किसी को बताना है व्हाट इज मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कल आपका लेक्चर लगा वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स, राइट? Till then, take care, get prepared, all the best, and bye.